Good morning students. Today we will start with part 8 of the video. The video series is going for chapter 7 triangles 9th class NCERT, and we are here at exercise 7.3 part 8 of the video. Previously we have covered 7 parts and we have covered so far 7.1 exercise, 7.2 and 2 theorems are there. Now we are starting 7.3 exercise. In this part we will cover question number 2, 4 and 5. Let us start with question number 2. We will definitely cover question number 1 and 3 in the next video, or if possible in this video also. So let us do with question number 2. Question number 2 is AD is an altitude. Altitude means perpendicular. So AD is an altitude of an isosceles triangle ABC. ABC हमें एक isosceles triangle दी हुई है और AD उसका एक altitude है. तो ABC is an isosceles triangle and AD is an altitude of perpendicular. So AD 90 डिग्री एंगल बनाता है BC के साथ. अब क्वेश्चन में दिया है in which AB equal to AC. So given information है in triangle ABC, AB equals to AC first thing, and angle at D is 90 degree, और हमें 2 प्रूव करना है. याद करो सेम क्वेश्चन 7.2 में सेकंड क्वेश्चन था, बट वहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ था, तो यहां पर सिर्फ परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड दिया है, तो बाइसेक्टर कोई गिवन नहीं है यहां. तो 2 प्रूव करना है. एक पार्ट AD बाइसेक्ट्स BC, तो हमें प्रूव करना है AD बाइसेक्ट्स BC का मतलब होता है कि BD और DC इक्वल है. ये प्रूव करना है BD एंड DC आर इक्वल. सेकंड इज AD बाइसेक्ट्स एंगल A. AD बाइसेक्ट्स एंगल A, दैट इज कि एंगल A पर नाम रख लेते हैं एंगल 1 और एंगल 2. तो हमें प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सो वेरी इजी. तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका. लेट अस डू द प्रूफ. तो इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं ABD एंड ACD इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD. इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखें तो AB इक्वल टू AC गिवन, दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री गिवन, और ये चीज कॉमन है AD. तो RHS रूल लग गया. राइट एंगल है दोनों ट्रायंगल में, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक कॉमन साइड, RHS रूल. तो पहले राइट एंगल की इंफॉर्मेशन लिखते हैं. तो राइट एंगल है ADB, या तो नाम रख लो एंगल के या फिर पूरा लिख लो ADB. एंगल D मत लिखना, क्योंकि D ये भी है तो कौन सा होगा, तो पूरा लिखेंगे ADB. दैट मीन्स वी आर कंफर्मिंग दिस एंगल एंड 90 डिग्री एंड ADC. सो रीजन क्या है इसका, ईच 90 डिग्री. इट इज गिवन दैट D is 90 degree perpendicular. It is given. Second is right angle hypotenuse. तो AD in triangle ABD, AD के सामने hypotenuse, तो AB hypotenuse equal to इसके सामने hypotenuse AC. तो AB equal to AC, ये भी given था. And the third is common. तो common side क्या है हमारे पास, AD. तो AD equals to AD and this is common side. तो therefore you can say triangle ABD is congruent to triangle ACD by which rule? By RHS rule, right angle hypotenuse side rule. So therefore it implies, अगर ये दोनों ट्रायंगल congruent होगी तो it implies BD equal to CD. Reason by CPCT, corresponding parts of congruent triangle. This proves the first part. ये आपका hence prove हो गया first part. BD equal to DC दिखा दिया. और it again implies angle 1 is equal to angle 2. Reason again same, corresponding parts of congruent triangle, and that proves second part. And we are done this question. Angle 1 equal to angle 2 by corresponding parts of congruent triangle. CPCT they are equal. Angle B equal to angle CB, CPCT से आप कर सकते हो. But जो उसने पूछा था हमने वो कर दिया. That was question number 2. Now let us do question number 4. So question number 4, BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Use RHS rule to prove triangle ABC is isosceles. So same question आपने किया होगा
7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 वही यहाँ पर है, बस रूल चेंज हो जाएगा। और मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि ये 7.3 में आएगा। तो ABC ट्रायंगल है हमारे पास, प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो अगर ट्रायंगल को आइसोसेलेस दिखाना होता है तो AB इक्वल टू AC दिखा दो, प्रूव हो जाएगा कि आइसोसेलेस है। गिवन क्या है, गिवन है कि एल्टीट्यूड्स इक्वल है, तो BE एल्टीट्यूड इक्वल टू CF है, और ये एल्टीट्यूड है तो BE एल्टीट्यूड होगा AC पर, CF एल्टीट्यूड होगा AB पर। तो ड्रॉ कर लेते हैं, इस पर डायग्राम आपको दिया नहीं हुआ तो ड्रॉ खुद कर लेना। ये BE परपेंडिकुलर AC पर और ये CF परपेंडिकुलर AB पर। ऑब्वियस बात है ना, यहां से नीचे से देखें तो भी एंगल कितने ही दिखेंगे, 90 डिग्री, क्योंकि एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है एक स्ट्रेट लाइन पर। तो यहां से देखो या यहां से, दोनों तरफ से 90 दिखेगा। ऑलराइट, अब RHS रूल से प्रूव करने के लिए कहा है उसने। तो RHS रूल कैसे लग सकता है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि BE CF के इक्वल है। तो RHS रूल के लिए राइट एंगल चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए और एक कॉमन साइड चाहिए। तो इस बार हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं जो ये वाली ट्रायंगल है, ये रेड से मैंने मार्क कर दिया। इस ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है, BCF ट्रायंगल। और एक ट्रायंगल हम लेते हैं जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, अब ये ट्रायंगल, ये कौन सी ट्रायंगल है आपके पास, BEC ट्रायंगल। तो ये दो ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। अब इनमें BC कॉमन हो गया, दोनों ट्रायंगल में एक 90 डिग्री है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज कॉमन और एक साइड चाहिए। तो BE साइड और CF इक्वल गिवन है, RHS लग गया, डन। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल B, ये रेड वाली ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, B फिर C F ही बचा, एंड अब ब्लू वाली ट्रायंगल ले रहा हूं। तो ब्लू वाली ट्रायंगल थी ये वाली। अब अगर यहाँ B है तो यहाँ C से स्टार्ट करेंगे, C उसके बाद B और उसके बाद E ना। ये दोनों ट्रायंगल में आप क्या लिखोगे, राइट एंगल। तो राइट एंगल का नाम रख लेते हैं BCF ट्रायंगल में BCF, इस राइट एंगल का नाम 1 रख लेते हैं। CBE में इस राइट एंगल का नाम 2 रख लेते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज ईच 90 डिग्री, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस। सो राइट एंगल से स्टार्ट किया, हाइपोटेन्यूज। तो इस F के सामने BC, इस E के सामने BC, बट अब BC नहीं लिखोगे, देखो फर्स्ट सेकंड लेटर BC या CB है, तो BC इक्वल टू CB, रीजन इज कॉमन, और ये हाइपोटेन्यूज वाला हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा CB क्यों लिखा मैंने, लेटर के कॉरस्पॉन्डिंग लेटर। इसमें BCF चलता है, उसमें CBE चल रहा है। और थर्ड इज वन साइड, वी नीड वन साइड। तो BCF के अंदर ये वाली साइड CF और CF, तो उसमें साइड BE। सो दीज टू आर इक्वल and this is given. So therefore you can say triangle BCF congruent to triangle CBE. तो कौन से रूल से congruent हुई ये ट्रायंगल, these triangle are congruent by the rule of right angle hypotenuse side. So RHS रूल से ट्रायंगल congruent होगी। और congruent होते ही अब AB इक्वल टू AC कैसे प्रूव होगा, देखो ट्रायंगल में तो AB AC है ही नहीं, ये एंगल तो इक्वल हो जाएंगे ना बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आप क्या कहोगे, कौन सा एंगल इक्वल हुआ, BCF के लिए कौन सा एंगल हुआ, एंगल एट B पर। तो CBF एंगल लिख दूं, CBF एंगल, CBF, और CBE में क्या लिख देता हूं, BCE एंगल, BCE, दे आर इक्वल। रीजन क्या है, सिंप्लिसिटी। बट अब ध्यान से देखो, यही एंगल एक्चुअल में जो एंगल, ये एंगल B पर बन रहा है, ये एंगल है, इस एंगल को मैं ABC एंगल भी तो कह सकता हूं, इस एंगल को मैं ABC एंगल भी तो कह सकता हूं। दिस एंगल इज ऑल्सो ABC एंगल, एंड BC एंगल, तो दैट इज, इस एंगल को मैं ये भी लिख सकता हूं, और BCE एंगल को मैं BCE एंगल भी तो लिख सकता हूं। अब अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, और इनके ऑपोजिट साइड्स क्या है, इनके ऑपोजिट साइड है AC इक्वल टू AB। और रीजन क्या लगाया हमने, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, एंड दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो यहां हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with AB equal to AC।
तो ABC हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद AB इक्वल टू AC, AB एंड AC आर इक्वल। तो ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो वी आर गिवन AB इक्वल टू AC और आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। और क्या करना है, ड्रॉ करना है AP परपेंडिकुलर टू AP परपेंडिकुलर टू BC। तो A पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा AP और ये BC पर परपेंडिकुलर हो गया। आफ्टर दिस टू शो एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B और एंगल C को इक्वल दिखाना है, ये एंगल हमें इक्वल दिखाने हैं। तो ये आपको मैंने प्रूफ कराया ही था, थ्योरम ही है ये 7.2 थ्योरम। तो आपको प्रूफ करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो वेरी इजी प्रूफ, देखो आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो और CPCD से प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल लेंगे, ABP, एंड ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ACP। इन दोनों ट्रायंगल में आप कह सकते हो कि AB इक्वल टू AC गिवन है, AB इक्वल टू AC गिवन है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दे आर ऑल्सो गिवन 90 डिग्री, राइट एंगल हो गया दोनों ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज हो गया और एक साइड कॉमन है और कॉमन साइड क्या है, AP। तो AP इक्वल टू AP, दिस साइड इज कॉमन। तो कौन सा रूल लगा, RHS। तो देयरफॉर बाय RHS रूल ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP एंड then it implies angle B equal to angle C, and the reason is corresponding parts of congruent triangle, and that is what we are required to prove, hence proved. So angle B equal to angle C by CPCD, corresponding parts of congruent triangle. So I hope आपको समझ में आया होगा सब कुछ। 7.3 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, अभी इसमें टाइम है हमारे पास। तो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, 4 पार्ट है, तो मैं आपको इसके पार्ट्स जो एक एक करके समझा देता हूँ। तो हमने ट्रायंगल ABC बना ली, डायग्राम गिवन है आपको, और इसमें फिर क्या है, एक ये ऐसे कुछ दे रखे हैं। अब इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। ABC एंड DBC आर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ABC ट्रायंगल और DBC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो AB इक्वल टू AC दिया हुआ है और DB इक्वल टू DC दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस सेम बेस BC पर है, AD इज एक्सटेंडेड, AD को ज्वाइन करा, एक्सटेंड कर दिया P पॉइंट तक, जो BC को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब हमें शो करना है, फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट गिवन खुद लिख लेना आप, टू प्रूव क्वेश्चन में दिया ही हुआ वो वहीं से लिख लेना, फिगर मैंने बना दिया वो भी क्वेश्चन में दिया। मैं प्रूफ स्टार्ट करा रहा हूँ आपको, और प्रूफ कर रहे हैं हम फर्स्ट पार्ट का, और फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना है वही ट्रायंगल ले लेते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमने ट्रायंगल ले ली ABD एंड ट्रायंगल ACD। हमें इन दोनों ट्रायंगल को ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमने यही 2 ट्रायंगल ले ली, ABD एंड ACD। तो अब ध्यान से देखो, ABD ट्रायंगल में और ACD ट्रायंगल में क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? आई थिंक तो यस, दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस रूल। क्वेश्चन ही खत्म। तो आप क्या लिखोगे, AB इक्वल टू AC। ध्यान से देखो, ये गिवन है इंफॉर्मेशन कि ट्रायंगल आइसोसेलेस थी, और इसी तरह से BD इज इक्वल टू CD, ये भी ट्रायंगल DBC आइसोसेलेस थी, ये भी गिवन है, और AD इक्वल टू AD, ये तो कॉमन ही हो गई। तो इट मीन्स क्या हो गया हमारे पास, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD by which rule? Side side rule, and that proves our first part. Second part कह रहा है triangle ABP is congruent to ACP. Triangle ABP is congruent to ACP. ये अब हमें सेकंड पार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट के लिए अब हमने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव कर लिया, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव कर लिया कि ABD एंड ACD कॉन्ग्रुएंट है। अगर ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आप कह सकते हो कि ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे बाय CPCD। यस, यू कैन से दिस। अब ABP और ACP में देखते हैं कौन से क्राइटेरिया से कर सकते हैं। ABP ACP, ये एंगल 1 एंगल 2 आपको फर्स्ट वाले पार्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए थे तो मिल रहे हैं।
AP कॉमन हो गया और AB इक्वल टू AC गिवन है, तो S से S लग गया। तो लिखते हैं AB इक्वल टू AC, इट इज गिवन, साइड होगी। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको हमने अभी प्रूव किया इन फर्स्ट पार्ट, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। हमने प्रूव करा था कॉन्ग्रेंट का, और कॉन्ग्रेंट से क्या निकलता है, CPCT, तो CPCT से एंगल 1 2 इक्वल है, वो लिख लेना वहां पर। और थर्ड इंफॉर्मेशन AP इक्वल टू AP, दिस इज कॉमन। तो कौन सा रूल लग गया, साइड एंगल साइड, ध्यान से देखना इसको, साइड एंगल साइड रूल से ABP ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई ACP के, साइड एंगल साइड। तो हमने दो पार्ट कर लिए। फर्स्ट पार्ट हमने दिखा दिया ABD कॉन्ग्रुएंट है ACD के, फर्स्ट पार्ट कर लिया, टू प्रूफ डन। सेकंड पार्ट हमने दिखा दिया ABP ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के, ACP के। ये हमने दो पार्ट कर लिए। थर्ड पार्ट देखते हैं। तो इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो कह रहा है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP एंगल A को बाइसेक्ट करता है और एंगल D को करता है। A को तो आपने प्रूव कर ही दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि जो AP है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। अब दिखाना है कि ये D को भी करता है। अगर AP एंगल D को बाइसेक्ट करता है तो आपको ये दो एंगल इक्वल दिखाने होंगे। तो इनको इक्वल दिखाने के लिए सबसे आसान तरीका, आपको पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि आप फर्स्ट पार्ट के अंदर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो, और ये उनके लीनियर पेयर एक्सियम से इक्वल होंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो रहा है। एक तरीका ये है। और दूसरा, अगर ये दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट कर लेते हो तो भी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। मान लो एंगल 3 और 4 रख लिया, तो 3 और 4 को इक्वल दिखाने के दो वे हैं। पहला, अगर मैं DBP और DCP ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लूं, कैसे कॉन्ग्रुएंट करूंगा, BP इक्वल टू PC होगा। क्यों? क्योंकि आप सेकंड पार्ट कर चुके हो ना, CPCT यूज करना है इसकी, तो BP इक्वल टू PC हो जाएगा। DB इक्वल टू DC गिवन है और DP इक्वल टू DP कॉमन, तो ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा CPCT से। दूसरा वे, एक मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, दूसरा तरीका मैं करके दिखा रहा हूँ, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा। रीजन, CPCT ऑफ फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अप्लाई करते हो ABD और ACD ट्रायंगल में 5 और 6 इक्वल आ जाएंगे। बट 5 एंगल को आप क्या लिख सकते हो, इट इज 180 डिग्री माइनस 3, क्योंकि 3 और 5 का सम 180 है क्योंकि लीनियर पेयर एक्सियम है। और 6 एंगल इसी तरह से आप लिख सकते हो 180 माइनस एंगल 4, तो अब 5 और 6 इक्वल हैं तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। 180 माइनस 3 इक्वल टू 180 माइनस 4, तो 180 से 180 कैंसिल होगा, माइनस एंगल 3 इक्वल टू माइनस एंगल 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और यही हमें दिखाना था कि AP बाइसेक्ट एंगल D एज वेल एज A तो ये आ गया, D ये आ गया, डन। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, हो गया ये तो ऑटोमेटिकली। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो बाइसेक्टर तो आ ही गया, BP इक्वल टू PC मतलब बाइसेक्टर, क्योंकि सेकंड पार्ट में हम ABP ट्रायंगल को ACP ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, तो BP इक्वल टू CP बाय CPCT हो गया। अब परपेंडिकुलर दिखाना है, यानी एंगल 90 डिग्री दिखाना है। इस एंगल का नाम 7, इस एंगल का नाम 8। आपको पता है 7 और 8 एंगल का सम 180 लीनियर पेयर एक्सियम से, और 7 और 8 एंगल इक्वल। रीजन क्या है इसका, 7 और 8 इक्वल, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थी तो CPCT यूज कर लिया। 7 और 8 को डालोगे इसके अंदर तो ट्वाइस ऑफ 7 इक्वल टू 180, तो एंगल 7 इक्वल टू कितना आ गया, 90। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, हेंस प्रूफ। तो ये इसके 4 पार्ट थे इजी से। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख ही लेते हैं, देन वी आर डन विद चैप्टर 7। तो 7th चैप्टर का 7.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 7.3 का, इसमें दिया 2 साइड्स AB BC एंड मीडियन AM। 2 साइड्स AB BC एंड मीडियन AN, ABC, साइड AB, साइड BC और मीडियन AM। अच्छा, AM मीडियन है, अगर मीडियन है तो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा, पहली बात। तो उसने क्वेश्चन क्या है, इस ट्रायंगल की 3 साइड, एक तो AB, एक BC और एक मीडियन AM, क्या है ये, दे आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड ऑफ वन ट्रायंगल, दे आर इक्वल टू, एक और ट्रायंगल है PQR, दे आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ, साइड QR एंड मीडियन PN होगा, हाँ, एंड मीडियन PN, यानी ये इसके इक्वल गिवन है। फिर ये जो BC है ये QR के इक्वल गिवन है, और फिर ये जो AM है वो इसके इक्वल गिवन है। और ये
हाफ हाफ तो है ही, यानी m जो है वो मिड पॉइंट है क्योंकि मीडियन था तो मिड पॉइंट है, और n भी क्या है, मिड पॉइंट है क्योंकि मीडियन था। तो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब इतने गिवन होने के बाद प्रूव करने हैं दो पार्ट। एक तो दिखाना है ABM ट्रायंगल, ABM कॉन्ग्रुएंट दिखानी है किस ट्रायंगल के, PQN के, PQN के। ये है फर्स्ट पार्ट, पहले यही कर लेते हैं, ABM और PQN। तो अब एक बार बहुत सिंपल सी है, ध्यान से देखना, हम यही दो ट्रायंगल ले लेते हैं प्रूफ करने के लिए, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखो तो AB इक्वल टू PQ तो आपको गिवन है, ये दोनों इक्वल गिवन है, ये दोनों भी इक्वल गिवन है, मतलब AM और PN भी इक्वल गिवन है। तो दो साइड तो मिली गई, अब आपको तीसरी साइड चाहिए। तो अब बच्चे ध्यान से समझो, BC इक्वल टू QR गिवन है आपको, BC इक्वल टू QR इट इज गिवन। बट आपको पता है कि BC को ट्वाइस ऑफ BM लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि ना BM में MC ऐड करते हो आप तो BC बनेगा, ऐसे ही QN में NR ऐड करो तो QR बनेगा। बट BM और MC तो इक्वल है क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट है, क्योंकि AM मीडियन था, मीडियन क्या करता है, ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट। इसका मतलब BM और CM इक्वल है। अगर BM और CM इक्वल है तो जो ये MC या CM है इसकी जगह मैं BM यूज करता हूँ, BM प्लस BM ट्वाइस ऑफ BM हो जाएगा, और ट्वाइस ऑफ BM BC के इक्वल आया तो BM की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ ऑफ BC आ गई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, मतलब वही उठा, यही लिख लो, BC किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ BM। इसी तरह से QR किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ QN के। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से BM किसके इक्वल आ गया, QN के। बस यही इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी। तो BM इज इक्वल टू QN, और ये हमने प्रूव कर दिया। अब यहाँ से क्या लगा, ट्रिपल S, साइड साइड साइड, और ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। लिख लेना प्रॉपरली। ये हो गया पार्ट डन। और नेक्स्ट पार्ट क्या दिखाना है, अच्छा अब यहाँ से अगर ये एंगल 1 और एंगल 2 कह दूँ तो एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल हो गए ना, बाय किस रूल से हुए, CPCD से, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय CPCD एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल। अब बड़े वाले ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यही आपका सेकंड पार्ट प्रूव करना है। तो सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के, PQR के। तो इसके लिए क्या करोगे, AB इक्वल टू PQ हमें क्वेश्चन में गिवन है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अब हमने प्रूव कर लिया है, प्रूव इन फर्स्ट पार्ट, और BC इक्वल टू QR क्वेश्चन में गिवन है। तो बच्चों कौन सा रूल लगा, SAS, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, एंड दैट इज डन। तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.3 हो गई कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।